આ કાર્યક્રમમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ ભાગ લીધો હતો। પાર્ટી પ્રમુખ જેપી નડ્ડાએ શાલ ઓઢાડીને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું સ્વાગત કર્યું હતું। વડાપ્રધાને કાર્યકર્તાઓને કહ્યું કે પાર્ટીએ દરેક બૂથ પર 370 વોટ વધારવા પડશે। 100 દિવસનું જનસંપર્ક અભિયાન ચલાવવાનું છે। ભાજપે છેલ્લા 10 વર્ષમાં કરેલા કાર્યોનો પણ પ્રચાર કરવો પડશે। બીજી તરફ જેપી નડ્ડાએ કહ્યું, દેશને મોદીની ગેરંટી પર વિશ્વાસ છે। 17 રાજ્યોમાં ભાજપની સરકાર છે। આપણે રાજસ્થાન, છત્તીસગઢ જીત્યા, આ વખતે આપણે બંગાળ પણ જીતીશું। રાષ્ટ્રીય અધિવેશનમાં દેશભરમાંથી પાર્ટીના 11,500થી વધુ પદાધિકારીઓએ ભાગ લીધો છે। રાષ્ટ્રીય કાર્યકારિણી અને રાષ્ટ્રીય પરિષદની આ બેઠકમાં લોકસભા ચૂંટણીમાં જીત માટે રોડમેપ તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યો છે। સાથે જ છેલ્લા 10 વર્ષના શાસન દરમિયાન પાર્ટી દ્વારા લેવામાં આવેલા મોટા અને નિર્ણાયક નિર્ણયો માટે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો આભાર માનવામાં આવ્યો છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે ભાજપને 370થી આગળ અને એનડીએને 400થી આગળ લઈ જવાનો લક્ષ્યાંક માત્ર એક આંકડો નથી। જમ્મુ અને કાશ્મીરને ભારતનો અતૂટ અને અવિભાજ્ય હિસ્સો બનાવવા માટે ડૉક્ટર શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જીએ પોતાના જીવનનું બલિદાન આપ્યું હતું। દરેક બૂથ પર ભાજપ કાર્યકર્તાઓએ આગામી 100 દિવસ માટે છેલ્લી વખતની સરખામણીમાં ઓછામાં ઓછા 370 મતો વધારવા જોઈએ। તેમણે કહ્યું કે જેઓ પ્રથમ વખત મતદાતા છે તેમની સાથે તમામ શક્તિ સાથે ભાજપની તરફેણમાં મતદાન કરવા પ્રેરિત કરવા જોઈએ। મહિલાઓને માત્ર મતદાર ન ગણીને માતા બહેનોના આશીર્વાદ લેવા જોઈએ। આજે ભાજપ વિશ્વની સૌથી મોટી રાજકીય પાર્ટી બની ગઈ છે। 2014 પહેલાં આપણી માત્ર 5 રાજ્યોમાં સરકાર હતી અને લાંબા સમયથી આપણે 5-6 માં અટવાયેલા હતા। 2014 પછી આજે 17 રાજ્યોમાં એનડીએની સરકાર છે અને 12 રાજ્યોમાં ભાજપની સરકાર છે। ભારતીય જનસંઘ અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના 7 દાયકાના ઇતિહાસમાં આપણે પણ દરેક સમયગાળો જોયો છે। આપણે સંઘર્ષનો સમયગાળો જોયો, આપણે ઇમરજન્સી જોઈ છે, પરંતુ અમે ખુશ છીએ કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં છેલ્લો દાયકો સિદ્ધિઓથી ભરેલો છે। 2014 પહેલાં લોકો આપણી મજાક ઉડાવતા હતા કે સાહેબ તમે જ આખી સરકાર બનાવશો। તેઓ વિચારતા હતા કે આ શક્ય નથી, પરંતુ 2014 પછી આપણી સરકાર બની અને 2019માં પણ ફરી આપણી સરકાર બની। 7 दशक के भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में हमने हर कालखंड को देखा है। हमने संघर्ष का काल देखा, हमने जब हमारी उपेक्षा की जा रही थी वो काल भी देखा, हमने वो काल भी देखा जब हम जमानत बचाने के लिए चुनाव लड़ते थे। हमने इमरजेंसी भी देखी, संघर्ष भी देखा। हमने चुनाव में जीतने की प्रक्रिया, हारने और जीतने की प्रक्रिया भी देखी। लेकिन हम सबको बहुत ही खुशी है कि पिछला दशक जो गुजरा है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उपलब्धियों भरा है, उपलब्धियों से भरा हुआ है। ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी का विषय है। हमने पीछे भी जीत देखी है और हमने आगे भी जीत देखनी है। हम सब लोग यहां से आज उत्साह हम सब के मन में है, हम उत्साहित हैं, लेकिन उत्साह के साथ साथ प्रफुल्लित भी हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमको चेतन अवस्था में रहते हुए पूरी ताकत के साथ 370 पार करना है और एनडीए को 400 लाना है। उसके तरफ हमको आगे बढ़ना है। 370 हमको पार करना है और इसके लिए हर बूथ पर पूरी ताकत से जुटना है। ये हमारे सामने जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात एक करते हैं, मुझे पूरा भरोसा है आप पर, पूरा विश्वास है। आप पूरी ताकत से लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में 3rd टर्म पे हैट्रिक भी करेगी और रिकॉर्ड भी तोड़ करके आगे बढ़ेगी। इस तरीके से हम आगे। सबसे आनंद आप सबको तब आया होगा जब अभी 3 प्रदेशों के चुनाव हुए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और यहां भी भारतीय जनता पार्टी और कमल के निशान ने। यह सब संभव हुआ है, यह सब संभव हुआ है क्योंकि लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास किया है। यह सब संभव हुआ है क्योंकि लोगों ने मोदी जी की गारंटी को गारंटी पक्की होने की गारंटी माना है, इसलिए संभव हुआ है। और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रमों को और कार्यक्रम के साथ साथ उनके किए गए कार्यों को मुहर लगाई है, वो भी हम सब लोगों ने देखा है। 2019 में हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। जहां 282 से 303 सीटें आई, वहीं हम 31% से बढ़कर 37% हमारा वोट शेयर बढ़ा। यह भी हमको ध्यान रखना।
हमारी जीत की श्रृंखला लगी और हमने जीतने की जो पारी थी उसको खेलना शुरू किया। हमें याद है कि 30 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में बनी और उसके बाद 5 साल बाद फिर से अगर कोई दोबारा सरकार पूर्ण बहुमत की बनी तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बनी, वो भी हमको याद है। जब 1989 में पालमपुर में अधिवेशन हुआ था, राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी हिमाचल में, हमारे प्रदेश में, और वहां पास हुआ था कि हम राम मंदिर के बनने के रास्ते को प्रशस्त करने के लिए प्रयास करेंगे, 1989। और उसके बाद हमने वर्षों नारे लगाए, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, हम कहे मंदिर वहीं बनाएंगे, ये नारे हमने लगाए। बीच में कुछ लोगों ने उपहास भी किया और कहा राम लला हम मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे, या तिथि कब बताएंगे। तो हमने कहा कि आपको तिथि भी बताएंगे और आप जरूर आएंगे। आप आए नहीं, ये आपके कर्म थे, लेकिन 22 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 11 दिन का कठोर अनुष्ठान करने के बाद रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का प्रतिष्ठान किया, वह भी हम सब लोगों ने देखा। आज हम भव्य राम मंदिर और रामलला को विराजमान होते वहां देखते हैं। 22 तारीख को उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई और रामलला के इस कार्यक्रम में नहीं सिर्फ कोई गांव, कोई देश, कोई सिर्फ देश या कोई प्रदेश, सारी दुनिया में दीप जले, सारी दुनिया में, और सारे मंदिरों में घंटियां बजी और रामलला का स्वागत किया गया। और यह भी हमारा वैचारिक प्रतिष्ठान जो था उसको हम लोगों ने के लिए उनको किस तरीके का अमानवीय स्थिति देखनी पड़ती थी। आज 11-12 करोड़ लोगों को इज्जत घर देकर प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं का सशक्तिकरण भी किया और महिलाओं को डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार दिया, यह भी हम सबको मालूम है।